Hello students, so in this video we will continue our chapter first of class 7th, which is equality. This is the part third of this video. Please go through part first and part second as well to understand this part in a much better way. So in part first and part second we have covered all these topics, and in this video we will understand how does Indian Constitution ensures equality of all the citizens in the country. How does Indian government ensures equality of all the citizens in the country? What is midday meal scheme and what is the Disabilities Act of 1995? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज बेटा हमारे जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो किस तरह से ये इंश्योर किया गया है उसमें कि हमारी कंट्री के सभी सिटीजन्स एक दूसरे के इक्वल हों. सो देयर आर सम प्रोविजंस एंड राइट्स which are there in our constitution which ensure the equality of all the citizens in the country. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं, कुछ ऐसे राइट्स हैं जो ये इंश्योर करते हैं कि हमारी कंट्री के सारे सिटीजन्स एक दूसरे के इक्वल हैं. दीज आर दोज राइट्स. सो फर्स्ट राइट इज एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ. हमारी कंट्री में हर कोई पर्सन लॉ के सामने इक्वल है. फॉर एग्जाम्पल, इफ our president commits a crime and a normal citizen of our country commits the same crime, both will be tried under the same law and the punishment for both would be same. अगर हमारे देश का प्रेसिडेंट कोई लॉ को वॉयलेट करता है और हमारे देश का कोई नॉर्मल सिटीजन भी उसी लॉ को वॉयलेट करता है, सो दोनों के लिए पनिशमेंट क्या होगी बेटा? सेम होगी. सो लॉ वुड बी सेम for both of them. So law will be equal for all the persons in the country. Second is no person can be discriminated on the basis of their religion, caste, race, place of birth और gender. हमारे देश में किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता. किसके आधार पर? उसके धर्म के आधार पर, उसकी जाति के आधार पर, उसके रंग के आधार पर. प्लेस ऑफ बर्थ मीन्स कि वो कहाँ पे उसका जन्म हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन इज बॉर्न इन द नॉर्थ इंडिया एंड ही गोज टू साउथ इंडिया, सो साउथ इंडिया में लोग उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते कि ही इज़ अ नॉर्थ इंडियन. सिमिलरली, इफ अ साउथ इंडियन पर्सन कम्स टू नॉर्थ इंडिया, सो नॉर्थ इंडियंस विल नॉट डिस्क्रिमिनेट with that person. Okay. And lastly is gender. Gender means male or female, both would be treated equally. Okay, there should be no discrimination with the girls. Now third point is every person has access to all the public places like playgrounds, shops, hotels, bathing ghats, wells, markets, etc. हमारे देश में सभी पर्सन के पास इक्वल राइट है सभी पब्लिक प्लेसेस पे जाने का, वेदर दे आर रिच और पुअर, वेदर दे आर फ्रॉम द सो कॉल्ड लोअर कास्ट और अपर कास्ट, वेदर दे आर मेल और फीमेल, all have the rights to go to playground, shops, hotels, bathing ghats, wells, markets. जितने भी आपके आसपास पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पे सभी लोगों को जाने का एक्सेस दिया गया है, राइट दिया गया है. ये राइट क्यों दिया गया है बेटा? स्पेशली बिफोर इंडिपेंडेंस सो कॉल्ड अपर कास्ट्स के लोग जो थे वो सो कॉल्ड लोअर कास्ट्स के लोगों को अलाउ नहीं करते थे टू यूज़ देयर वेल्स एंड बाथिंग घाट्स. जहाँ पे वो नहाते थे बाथिंग घाट्स, वहाँ पे जाने के लिए अलाउ नहीं करते थे. So that's why after independence our constitution makers specially added this right to ensure equality of all the persons. Next is practice of untouchability has been abolished in the country. Untouchability की practice को completely abolish कर दिया गया है. If someone would practice untouchability, he or she would be punished under the law. So what is the practice of untouchability? Untouchability is a form of practice in which the so-called upper castes people consider the so-called lower castes people as polluted and
they think that if they come in contact with the so-called lower castes people, they would also become polluted. अनटचेबिलिटी एक ऐसी प्रैक्टिस होती है जिसमें सो कॉल्ड अपर कास्ट के जो लोग हैं वो सोचते हैं कि जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट के लोग हैं वो पॉल्यूटेड हैं, एंड इफ दे वुड टच द लोअर कास्ट पीपल दे वुड ऑल्सो बिकम पॉल्यूटेड, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग एंड इनकरेक्ट प्रैक्टिस, एंड दैट्स वाई दिस प्रैक्टिस हैज़ बीन completely abolished by our in our constitution. Okay, and if any person practice untouchability, he or she would be punished under the law. So these are all the rights which are given to us by the constitution to ensure equality. Next is, how can the Indian government ensure equality of all the citizens in the country? हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो किस तरह से इंश्योर करती है कि हमारी कंट्री में इक्वालिटी बनी रहे? फर्स्ट इज बाय मेकिंग लॉज. आवर गवर्नमेंट मेक लॉज. ओके, हमारी गवर्नमेंट इस तरह के लॉज बनाती है, कानून बनाती है, which all the persons have to follow. Okay, कि all the persons in our country would be equal, और इसके लिए हमारी गवर्नमेंट एक लॉ भी बनाती है. ठीक है, सिमिलरली अगर कोई अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करेगा तो ही और शी वुड बी पनिश्ड अंडर अ लॉ विच वुड बी मेड बाय आवर गवर्नमेंट. अगर कोई अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी एज पर लॉ, और वो लॉ कौन फ्रेम करेगा? इंडियन गवर्नमेंट. सो आवर गवर्नमेंट मेक लॉज. एंड सेकेंड इज बाय मेकिंग and implementing government programs or schemes to help the disadvantaged communities. हमारी गवर्नमेंट इस तरह की स्कीम्स लाती है, प्रोग्राम्स लाती है, बनाती है और उनको लागू करती है. किसको हेल्प करने के लिए? डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज़. डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज़ में कौन आ जाते हैं बेटा? वो कम्युनिटीज़ जो हिस्टोरिकली कैसी रही हैं, जिनको कंप्लीट एडवांटेजेस नहीं मिले. फॉर एग्जाम्पल, poor people. Okay, they are disadvantaged because they are not equal to the rich people in the society. Similarly girls, similarly so called lower castes, similarly disabled people. So इनको uplift करने के लिए हमारी गवर्नमेंट इनके लिए स्पेशल स्कीम्स और प्रोग्राम्स बनाती हैं. ठीक है, सो हमारी गवर्नमेंट जो ये लॉज बनाती हैं और स्कीम्स बनाती हैं, दे फ्रेम इन द आवर पार्लियामेंट. ये सारे स्कीम्स और प्रोग्राम्स हमारे पार्लियामेंट में बनते हैं. ओके, एंड द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ आवर कंट्री, बाय द सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री. हमारी कंट्री के सिटीजन्स हैं वो पार्लियामेंट के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं, जो फिर हमारे लिए लॉज बनाते हैं और स्कीम्स बनाते हैं. ओके, सो we all the citizens are the pillars of the parliament. So this is our picture of our parliament. Now we will study one of such scheme which is मिड डे मील स्कीम. मिड डे मील स्कीम के बारे में पढ़ेंगे जो गवर्नमेंट ने बनाई है टू इंश्योर इक्वालिटी. अंडर दिस program was introduced in all the government elementary schools to provide children with cooked lunch. इस स्कीम में क्या होता है बेटा? जो गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स होते हैं उसमें बच्चों को फ्री फूड प्रोवाइड किया जाता है, फ्री कुक्ड फूड. ओके, एलिमेंट्री स्कूल्स मतलब ऑल द स्टूडेंट्स अप टू द क्लास ऑफ 8th क्लास तक सारे गवर्नमेंट स्कूल में चिल्ड्रन को फ्री कुक्ड फूड प्रोवाइड किया जाता है, एंड दैट फूड इज़ ऑल्सो वेरी न्यूट्रिशियस फॉर दोज चिल्ड्रन. तमिलनाडु वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस दिस स्कीम. हमारे इंडिया में सबसे पहले स्कीम को तमिलनाडु ने इंट्रोड्यूस किया अपनी स्टेट में. ओके, वेरी न्यूट्रिशियस फूड इज़ प्रोवाइडेड in all the government elementary schools. Okay, lunch, in the lunch time the government elementary schools provide food to the children. अब इस स्कीम्स के जो हैं हमें बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले. वी विल स्टडी दोज रिजल्ट्स. फर्स्ट इज मोर पुअर चिल्ड्रन बिगेन टू इनरोल एंड अटेंड स्कूल्स रेगुलरली. ज़्यादा से ज़्यादा गरीब बच्चों ने स्टार्ट कर दिया स्कूल में एडमिशन लेना और क्लासेस को रेगुलरली अटेंड करना, बिकॉज नाउ द फूड वॉज प्रोवाइडेड इन द स्कूल इटसेल्फ. ओके, सो ज़्यादा से ज़्यादा गरीब बच्चों ने स्कूल में एडमिशन लेना शुरू करा और अपनी स्कूल की अटेंडेंस जो थी वो भी उनकी बढ़ गई. सेकेंड इज द मदर्स ऑफ द चिल्ड्रन वर एबल टू डू देयर वर्क विदाउट इंटरप्शन. बेटा पहले क्या होता था, जब तक मिड डे मील स्कीम नहीं आई थी, लंच टाइम में
बच्चों को वापस उनके घर भेज दिया जाता था टू हैव देयर लंच। बट नाउ व्हेन द लंच वाज प्रोवाइडेड इन द स्कूल इटसेल्फ, सो उनकी मदर्स को फ्री टाइम मिल जाता था। ठीक है बेटा, जब फॉर एग्जांपल अगर बच्चे घर पे जाएगा तो मदर को अपना वर्क छोड़ना पड़ेगा। एंड फॉर एग्जांपल अगर उसकी मम्मी कोई लेबर है तो उनको अपना वर्क छोड़ के बच्चों को फूड देना पड़ेगा। बट नाउ द फूड वॉज प्रोवाइडेड इन द स्कूल, सो मदर कैन डू हर वर्क अनइंटरप्टेडली। मदर अपना जो वर्क है वो बिना किसी डिस्टर्बेंस के साथ, बिना किसी इंटरप्शन के साथ कर सकती थी। नेक्स्ट इज caste prejudices also reduced because the children from all the castes ate food together and often the food was prepared by a Dalit women. जो कास्ट को लेके प्रेजुडिसेस थे, भेदभाव था, वो भी कम हुआ। क्यों? बिकॉज इस स्कीम में जो सारे बच्चे थे वो एक साथ बैठ के खाना खाते थे। ठीक है, इसकी वजह से उनमें आपस में क्या बढ़ा? फ्रेंडशिप बढ़ी। सो कॉल्ड अपर कास्ट एंड सो कॉल्ड लोअर कास्ट में कास्ट प्रेजुडिसेस कम हुए। एंड द फूड, जो फूड को बनाया जाता था वो भी ज़्यादातर एक दलित विमेन ही प्रिपेयर करती थी। सो इसकी वजह से जो कास्ट को लेके डिफरेंसेस हैं वो भी कम हुए विद द हेल्प ऑफ द मिड डे मील स्कीम। फोर्थ इज it also helped in reducing hunger of poor children who were earlier not able to concentrate on studies because of their empty stomach. इस स्कीम से और क्या फ़ायदा हुआ बेटा? जो गरीब बच्चे थे उनको पहले क्या होता था, लंच टाइम में फूड नहीं मिलता था तो उनका जो कंसंट्रेशन है वो स्टडीज़ पे कम होगा। बट नाउ व्हेन द फूड वाज प्रोवाइडेड अंडर द मिड डे मील स्कीम, तो उनको लंच टाइम में अच्छा न्यूट्रिशियस फूड अवेलेबल है, उनका जो पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेशन है वो भी ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, उनकी जो स्कूल में परफॉर्मेंस थी वो भी बढ़ गई because of the midday meal scheme. So these are all the positive outcome of the midday meal scheme. Tamil Nadu was the first state to introduce this scheme. So this is a photograph of the children having their midday meal. इसमें बेटा बच्चे अपना मिड डे मील कर रहे हैं। दे आर गिवन वेरी न्यूट्रिशियस फूड। ऑल द चिल्ड्रन आर सिटिंग टुगेदर विद ईच अदर। ओके, सो लंच टाइम में अप टू 8th क्लास मिड डे मील स्कीम में आपको गवर्नमेंट स्कूल्स में फूड प्रोवाइड कराया जाता है। सो दिस इज अ स्कीम विच इज़ मेड बाय आवर गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज डिसेबिलिटीज़ एक्ट ऑफ 1995। ये एक्ट आया किसके लिए? फॉर द benefit of disabled people or so called specially abled people. Okay, so called disabled people or specially abled people. विकलांगों के लिए ये लॉ एक्ट आया, डिसेबिलिटीज़ एक्ट ऑफ, इन द ईयर 1995 में। इसमें क्या होता है बेटा? द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फ्री एजुकेशन टू पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट में जो भी पर्सन डिसेबल होता है उसको गवर्नमेंट फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराती है। And the law also states that all the public places, including buildings, schools, etc., should be accessible and provided with ramps. ये लॉ स्पेशली क्या बोलता है कि जितने भी सारे पब्लिक प्लेसेस हैं वो जो डिसेबल्ड पीपल हैं उनके लिए एक्सेसिबल होने चाहिए। इट मीन्स जो डिसेबल्ड पीपल हैं वो एबल हो सके वहाँ तक पहुँचने के, वो सारे पब्लिक प्लेसेस को एंजॉय कर पाएँ। ठीक है, तो इसके लिए गवर्नमेंट को कैसा एक इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है जिसकी हेल्प से जो डिसेबल्ड पीपल हैं वो उन पब्लिक प्लेसेस तक पहुँच पाएँ। फॉर एग्जाम्पल रैम्प्स बनवाने हैं। रैम्प्स क्या होते हैं बेटा? दीज आर द रैम्प्स। ओके, जो डिसेबल्ड पीपल हैं वो स्टेयर्स पे नहीं चढ़ सकते, सो विद द हेल्प ऑफ रैम्प्स दे कैन ईजिली गो अप एंड डाउन फ्रॉम अ बिल्डिंग। ओके, सो गवर्नमेंट को हर जगह पर रैम्प्स प्रोवाइड करने हैं फॉर द ईजी मूवमेंट ऑफ द डिसेबल्ड पीपल। सो दिस इज अ एक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ Disabled People, Disabilities Act of 1995. So the remaining topics now will be covered in the next class, that is the part 4. That part would be the last part of this chapter. Till then, keep learning.